potential which electron sees because of other ions actually going to be really complex. So here in nearly free electron model, uh, we have simplified our potential to be like this simple sinusoidal function. Let me show that quickly. So that was the simplification, and that's how we can be in a position to obtain the energy gap. So well, that is how this looks in the first Brillouin zone now. So both actually represents the energy dispersions for electron or band structure for electron in free state, that is free electron band structure, and other one is band structure for electron within nearly free electron approximation. Now we will move further and we'll talk about something important, which was actually put forward by Bloch, and I'm sure you would have heard of these terms earlier. Have you studied Bloch theorem or Bloch function somewhere, maybe in your undergraduates? Yes, anyone? पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। हैं? आराम से बोलो भाई, नो सर यस सर बोल के भाग जाते हो, ठीक से बोलो, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। हैव यू डन इट? यस सर। नहीं पढ़ा है सर। अच्छा, अमित ने नहीं पढ़ा है, साहिल ने? सब पढ़ा है मैंने। पढ़ा है, अच्छा, अदर्स? यस सर। नो सर। विवेक ने नहीं पढ़ा है। तो नो सर। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है, पहले उनसे बात करते हैं। आपके क्या क्या डाउट्स थे या कोई क्वेश्चंस थे, कोई कंफ्यूजन्स थे आपके दिमाग में इसको लेके? आपको सब समझ आ गया था ब्लॉक थ्योरम को लेके या ब्लॉक फंक्शंस को लेके? डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस सो दैट आई कीप दोज इन माइंड व्हाइल प्रोसीडिंग फर्दर? यस, या समझ आ गया था आप लोगों को? संदीप, राहुल? यस सर। यस सर। आपको समझ आया अच्छे से ब्लॉक फंक्शन? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं था? नहीं सर। ओके, राहुल, Yes, sir. was it clear? Yes, sir. Very good. Well, then let us discuss it for those who have not done it. And those who have already done it, cross-check if you understood it properly or not. So basically, what Bloch proposed or proved was something important, which was actually regarding the nature of wave function of an electron when it is subjected to a periodic potential. I think so far we have done cases of, or I mean, those who have not studied these Bloch case, you must have studied the wave functions for something like, say, a particle in a infinite square well potential. That is how those looks like, right? And so on. Now that's wave function for a localized electron. Means electron is localized within this volume or this region. But what is the case of an electron in a solid? The electron actually is subjected to a periodic potential. That's how we had drawn it earlier, correct? That's how that potential is actually going to look like, something like this. Maybe Coulomb type of potential, we can say this. And potential satisfies a periodicity condition like, okay, V of x plus A is equal to V of x. In case we say
A is this interatomic separation A. So the question which Bloch asked was, how would the wave function for electron, which is subjected to a periodic potential, should look like? Even if it is, say, suppose infinite square well potential. Let us say electron is subjected to a periodic infinite square well potential. मान लीजिए है infinite square well potentials ही, but periodic हैं अभी. यहाँ पे infinite square well potential मिलता है, यहाँ पे मिलता है, मान लो यहाँ पे, and so on. Oh, I mean like this. So question is, what is the effect of that periodicity on the wave function of the electron? So that was the thing which was asked by Bloch, and he indeed solved it. So what he said, let us first come to the result which he proposed, or what he found. So he found, that's called the Bloch functions. Now, how he came to this, we will be discussing in the remaining part of the lecture. So don't worry, I mean, it's not something you need to just cram. There was a logic in the idea of Bloch. How he arrived at this will be discussed shortly. But first, let us see the form of this Bloch function. So what Bloch said, that the wave function for an electron subjected to a periodic potential should look like this. Now you will say, oh, I mean, what is this? What are all the terms sitting here? So this is nothing but the wave function for an electron in case it would have been free. Means there should not have been any periodic potential or any kind of potential indeed. So this is wave function for free electron. Times effect of periodicity comes into this term, which we are calling as UKR. And this function is what is of key importance. तो UKR का जो detailed form होगा, वो क्या होगा? उसको हम देखेंगे अभी coming part में. And then you saw something additional as well, psi k. The wave function is a function of k, the wave vector as well. You know, शुरू में हमने कहीं बात की थी कि एनर्जी जो है सॉलिड में इलेक्ट्रॉन की along with being a function of, more generally अगर आप देखेंगे NLSM है ना, NLMS के साथ साथ k का फंक्शन भी होती है, जिसको हम शॉर्टकट में E एज ए फंक्शन ऑफ k भी बोल देते हैं. E के डायग्राम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा, E k diagram. How does this dependence come? This dependence comes from k dependence of the wave function, because you know what is the wave function? Energy. So energy को अगर आप लिखते हैं तो आपको आपने पढ़ा होगा वही एनर्जी क्या होती है, wave function times Hamiltonian psi star psi k over the volume. So integral over the volume dv whatever divided by psi star psi, है ना, ये कुछ होता है. So energy means once you know the wave function, another way of looking at it is then you can find out the energy E versus k, and that is why the energy depends upon k. तो या तो आप k डिपेंडेंस ऑफ वेव फंक्शन निकाल लीजिए, एनर्जी का k डिपेंडेंस वहां से फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई ओके, पीरियोडिक पोटेंशियल का जो इफेक्ट है वो किसमें है? यूके में. द क्वेश्चन इज हाउ डज यूके लुक लाइक, या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूके. तो ब्लॉक ने क्या पाया कि भाई यूके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ ऐसी है दैट यूके, पहली चीज तो यू जो है, यूके मींस इट इज ए फंक्शन ऑफ के, द वेव वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मींस के क्या बता रहा है? इट इज ए क्वांटम नंबर फॉर स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियोडिक सॉलिड और इन ए सॉलिड. ये एडिशनल क्वांटम नंबर है एक, मान लो, मतलब NLMS के अलावा, है ना, वेव वेक्टर. तो यूके मींस कौन सी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए ये वेव फंक्शन अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा. हिमांशु शर्मा जी इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन? आप लोग इतना लेट तक क्या करते रहते हो? हिमांशु, व्हाई यू आर सो लेट यार? हिमांशु कहाँ रह गए?
सर वो नोटिफिकेशन ही नहीं आया था, अभी देखा ऐसे मैंने। कैसे हो सकता है? अभी कहाँ से मिला नोटिफिकेशन? सर मैंने खुद जाके चेक किया था अभी क्लासरूम के अंदर, लिंक यार पड़ा आपको था। पता है कि क्लास ऑन होती है तो यू शुड बी फॉलोइंग द क्लासरूम टाइमली। यस सर। तो ध्यान रखा करें आगे से, आप लोग बहुत लेट तक चले होते हो और मुझे वेट करते रहना पड़ता है कि अभी चलो आगे होंगे सारे। सो नेक्स्ट टाइम से मैं आई विल क्लोज द क्लासरूम टाइमली, ताकि फिर क्लास शुरू करूंगा, फिर मैं अलाउ नहीं करा करूंगा, तो आप लोग ध्यान रखें थोड़ा, ठीक है? ओके, सो यूके जो है ये एक यूनिवर्सल फंक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के लिए। ये उस पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, कौन सी स्टेट में है। मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ के, दैट इज व्हाई दिस सबस्क्रिप्ट इज सिटिंग हियर यूके। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हाँ, व्हाटएवर स्टेट इज देयर फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये जिस भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, it has one very interesting property that uk of r is equal to uk of r plus t। ये जो प्रॉपर्टी यहां पे दिखाई गई है, where what is this t? T is the translation vector। ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है? 3D केस में हमने पढ़ा था, वो सारी चीजें अब यहां पे आएंगी। n1a plus n2b plus n3c, where a b c are any three lattice vectors. For cubic, all a b c are equal in magnitude and mutually perpendicular to each other. For others it may be different cases, different values or of a b c हो सकती हैं, ठीक है? Where a b c are the primitive lattice vectors। और t का physical meaning क्या है? It tells the translational periodicity in the crystal, कि भाई किसी भी डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में मैं जाता हूं तो इस पॉइंट पे अगर मेरा कोई क्वांटिटी की वैल्यू कोई स्पेसिफिक है, so that quantity will be periodic and repeating after that specific distance along that particular direction, ठीक है? so ये क्या बोल रहा है? ट्रांसलेशनल पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जांपल, इन ए क्रिस्टल when you are moving along a direction, मान लीजिए क्यूबिक है, when you are moving along 100 direction, the periodicity will be, what will be the periodicity? A means उस केस में तो t जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, ठीक है? ऑफ कोर्स, बट वट एवर टी यू टेक, उसके हिसाब से 1D के केस में क्या होगा? ये u of x plus a will be u of x, uk of x of course। तो ये प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी इस पीरियोडिक फंक्शन की, ठीक है? और पीरियोडिसिटी का इफेक्ट किस पे देखने को मिलेगा आपको, किस फॉर्म में आएगा इस इक्वेशन में, वेव फंक्शन में? uk ऑफ r की फॉर्म में। ओके, सो मूविंग फर्दर, जस्ट मोमेंट, ओके। अच्छा, अभी हमने इसको ऐसे ही रख लिया कि अच्छा ब्लॉक ने ये निकाला था कुछ, ये पर्टिकुलर फॉर्म होती है, पर यूके आर होगा क्या? व्हाट विल बी इट्स डिटेल्ड मैथमेटिकल फॉर्म? इसके ऊपर अभी मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है? अभी हम ब्लॉक का ही रिजल्ट को डायरेक्टली लेके यूके आर को ये प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट करके थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं। आइगन फंक्शंस फॉर द वेव इक्वेशन ऑफ ए पीरियोडिक पोटेंशियल आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लेन वेव, वही जो मैंने आपको बताया अभी, है ना? ये प्लेन वेव times this function which is periodic with periodicity of the crystal lattice, which is having same periodicity as that of the crystal lattice in the real space t, ठीक है? translational periodicity। now let us try to sort of prove this block theorem, या try to see this। so मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल है जिसमें n identical lattice points हैं। Means suppose we have a crystal of length L which is equal to n times a, one dimensional crystal है कोई, जिसमें कि जो periodicity है वो n times a है। तो उस केस में 1D के केस में क्या होगा? u जो पोटेंशियल है which electron fields, ये जो u है ना, ध्यान रखें, ये जो u है, this u is different than this small u, ठीक है? ब्लॉक फॉर्म में जो आ रहा है, कैपिटल U हम पोटेंशियल के लिए ले रहे होंगे यहाँ पे, स्मॉल u जो है वो जो वेव फंक्शन में ब्लॉक फॉर्म में जो uk आता है उसके लिए लेंगे।
हालांकि दोनों की पीरियोडिसिटी सेम है, बट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। रिलेशन क्या है दोनों में ये हम देखेंगे अभी कमिंग पार्ट में। बट हाँ, U इज एक्चुअली द पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है। और U की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? U ऑफ x plus SA will be equal to U of x, where S is equal to 1 2 3 4, ऐसे कुछ होना चाहिए, राइट? मींस पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल की बात ही कर रहे हैं तो भाई पीरियोडिक होना चाहिए पोटेंशियल, एंड दैट्स व्हाट वी आर राइटिंग हियर बाय दिस सिंपल फॉर्म, दैट S की अलग अलग वैल्यू के लिए पोटेंशियल पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस be guided by the symmetry of the ring to look for the solutions of the wave function। अब हम क्या बोल रहे हैं? symmetry of the ring, कहीं पे रिंग की बात करेंगे बुक में, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पे। तो उसका मतलब क्या है? मींस हम लगा रहे हैं बॉर्न करमैन बाउंड्री कंडीशन। मींस बॉर्न करमैन बाउंड्री कंडीशन में हम क्या कह रहे थे कि क्रिस्टल की कोई भी, ये थोड़ा सा रिंग थोड़ा खराब शेप का बन गया, इस तरह से मान लो इसको, है ना। कोई भी बाउंड्री नहीं है, मतलब उसको हम एक रिंग शेप में मान लेते हैं। तो इसमें कोई भी बाउंड्री पे एटम नहीं होगा, हर एक एटम की एनवायरनमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी। मींस व्हाट डू वी मीन मैथमेटिकली बाय दिस? दैट psi of x plus L is equal to psi of x, where L is n into A। मींस अगर आप इसको लीनियर मॉडल में देखना चाहते हो, मतलब इस तरह से L लेंथ अगर क्रिस्टल की है, तो वेव फंक्शन जो यहां पे कहीं होगा, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज द वेव फंक्शन हियर, psi of x plus L is equal to psi of x, ठीक है, which is nothing but the Born-Karman boundary condition। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ओके, वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं फिर उस केस में? psi of x plus a is equal to c into psi of x। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है। एक प्रूफ की तरह से हम एक प्रूफ निकालना चाह रहे हैं ब्लॉक थ्योरम के लिए, रफ सा प्रूफ, मतलब जो कन्वेंशनल प्रूफ जो लोग देते हैं टेक्स्ट बुक्स में, वो इसी तरह का देखने को मिलता है आपको। तो भाई psi of x plus na, क्योंकि l क्या था? na, वो किसके बराबर है? psi of x के बराबर है, ये तो हमने देखा। तो हम ये कह रहे हैं अच्छा psi of x plus a वो किसके बराबर हो? तो हम कह रहे हैं अच्छा हमें नहीं पता, पर कोई कांस्टेंट डाल लेते हैं, c टाइम्स psi of x मान लेते हैं। इट चेंजेस बाय समथिंग। हाँ, पीरियोडिक मींस एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें और भी है कि भाई पोटेंशियल तो पीरियोडिक होगा, u of x plus a बोलोगे तो u of x होगा, but wave function is not necessarily periodic, means this c is some factor which may be other than unity, ठीक है। तो पोटेंशियल पीरियोडिक होगा, बट वेव फंक्शन की सेम पीरियोडिसिटी हो वो जरूरी नहीं है। दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट विच इवन ब्लॉक नोटिस्ड। यहां से भी देखेंगे आप तो वेव फंक्शन की पीरियोडिसिटी वो सेम नहीं होगी जैसे कि पीरियोडिसिटी ऑफ पोटेंशियल होनी चाहिए। तो c कोई अननोन फैक्टर है मान लीजिए, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं। नाउ वी वांट टू ऑब्टेन एक्चुअली c, कि c होना क्या चाहिए फिर? अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि भाई ये लिख लेते हैं psi of x plus na, बॉर्न करमैन बाउंड्री कंडीशन लगा दी हमने, और हमें पता है कि एक बार ट्रांसलेट करेंगे तो क्या फैक्टर आएगा? c। n टाइम्स ट्रांसलेट करोगे तो फैक्टर क्या आ जाएगा? c raised to the power n, and this final form is nothing but psi of x because of बॉर्न करमैन बाउंड्री कंडीशन। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? that c raised to the power n should be 1, or what should be c? We can say c must be one of the nth root of unity। अब मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा nth root of unity क्या आते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड सो ऑन, nth रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ते हैं आप कहीं पे, ये एक बार अपनी किताब में जाके झांक लेना अगर आपको कंफ्यूजन रहे। उस केस में c की वैल्यूज क्या आनी चाहिए? c शुड बी e raised to the power iota। nth रूट ऑफ यूनिटी किस तरह से आता है? e raised to the power iota 2 pi s by n, where s is some integer
which can go all the way up to 0 1 2 so on up to n minus 1. So ये nth, क्योंकि भाई यूनिटी के कोई भी इक्वेशन है उसका एक रूट 1 तो होगा ही होगा, चलो माना हमने, मींस c रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 का एक रूट होगा भाई, c is equal to 1 will satisfy this equation of course, but that's not the only root. What other roots are possible? What other solutions are possible? तो टोटल कितने solutions होने चाहिए? n solutions होने चाहिए ना, जैसे लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, तो दिस इज है nth ऑर्डर इक्वेशन. सो इसके कितने n सॉल्यूशंस होंगे? इसका वन सॉल्यूशन इज दिस c इक्वल टू 1. रिमेनिंग n minus 1 सॉल्यूशंस आर दीज क्यूब रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी. इंपॉर्टेंट है ना. सो इनको पुट करेंगे तो हर एक वैल्यू के लिए s की with this value of c will satisfy this equation. This means this gives you all the n roots of unity. Is it clear? समझ आ रहा है आप लोगों को? Is it clear? Okay. तो वो अगर होता है तो हम वेव फंक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं? We can write down our wave function to be like this. Psi of x is equal to uk of x into e raised to the power. ये मैंने क्या किया, यहां पे c का वैल्यू पुट किया. अच्छा सॉरी, ओके, ये तो psi of x plus a है ना. देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखें थोड़ा. दिस इज psi of x plus a है ना. तो अगर psi of x मुझे लिखना है तो psi of x क्या होगा? Psi of x will be something like uk into this thing. अच्छा, अब आप बोलोगे अच्छा ये कैसे? तो c की वैल्यू मैंने पुट करी एक तो इसमें, और एक uk का फैक्टर डाला. व्हाट यू कैन डू इज क्विकली आप प्रूव करके देख सकते हो कि psi of x प्लस इस फॉर्म को ले लो और पुट करके देखो psi of x प्लस a with the property that uk of x plus a is equal to uk of x. ये करके देखते हैं अगर, तो आप क्या पाएंगे? इस फॉर्म को लेते हैं अगर, then you will find out that this particular property is actually satisfied. c की वैल्यू जो आप c आपने अभी निकाला, मतलब बोलने का ये है कि एक क्रूड सा प्रूफ है, मतलब एज सच बड़ा कोई कन्विंसिंग प्रूफ तो मुझे लगा नहीं, बट कन्वेंशनली लोग इस प्रूफ को देखते हैं कि अच्छा अगर मैं वेव फंक्शन की ये फॉर्म लेता हूं तो मैं ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकता हूं विद दीज वैल्यूज ऑफ c, which proves what you call the block theorem. Not very smart or convincing thing, but okay, this is conventional thing. But हाँ, consistent solution आएगा और ये सारी equations आपस में consistent है, एक को दूसरे में पुट करोगे तो आपको कोई भी conflict नहीं मिलेगा, which somehow says that okay these equations are, or what we can say is, उससे यह तो सिद्ध होता है कि भाई वेव फंक्शन की ये फॉर्म ठीक है. ठीक है, where uk of x has some property of periodicity, जो मैं अभी आपको बता दिया. ठीक है, तो एक बार ये फटाफट से करके देख लो जरा, आई मीन पुट करके देखो, आना चाहिए, कंसिस्टेंट है कि नहीं. 1 मिनट में करके देखो जरा, मैं आपको देता हूं एक मिनट. आए तो बताओ मुझे, once it is there. जिसका ना भी आए वो कम से कम बता दे मुझे कि सर नहीं आ पा रहा है हमें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं. ये ना सोचें कि मुझे नहीं आ रहा है तो अरे मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, सर बोलेंगे कि इसको तो आता ही नहीं है. ऐसा नहीं है. यू प्लीज बी ऑनेस्ट एंड एटलीस्ट लेट मी नो कि अच्छा नहीं आ रहा है सर, तो आई कैन हेल्प यू डूइंग द स्टेप्स. हो गया किसी का तो बताएं. व्हाट यू हैव टू डू इज, ये फॉर्म वेव फंक्शन की लेनी है और साई ऑफ x प्लस ए, x को a से रिप्लेस, x प्लस a से रिप्लेस करना है, और फिर आपको ये आना चाहिए वेयर c इज इक्वल टू दिस. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आ रहा है क्या नहीं आ रहा है.
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, मतलब which will be sort of a proof for what you call the Bloch's theorem. ये बहुत कन्विंसिंग और एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। आया भाई किसी का? यस सर, पर इसमें यू के एक्स प्लस ए आ रहा है। अरे यूके एक्स प्लस ए तो यूके होगा ना, यूके एक्स, तो वो Yes, sir. उसकी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी हम जो है वो यूज करेंगे, इसीलिए जो है इससे ये प्रूव होता है कि यू मतलब प्रूव बोलो या व्हाटएवर, दैट यू के ऑफ एक्स प्लस ए मस्ट बी यू के ऑफ एक्स फॉर दिस थिंग टू बी सेटिस्फाइड। ब्लॉक ने यही प्रूव किया था, यही पाया था कि ये जो है ऐसा फॉर्म होनी चाहिए यूके की। और किसी का आया? Anyone else? Yes, please. आया भाई किसी और का? पीजी वाले बालक? Any PG students? Okay, Sudesh says they got it. आ जाना चाहिए, फिर भी किसी का नहीं आता है तो मुझे कन्वे करें, आई विल हेल्प यू, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अभी हम एक बहुत प्रॉपर और सिस्टमैटिक प्रूफ देखेंगे ब्लॉक थ्योरम का कि अच्छा ब्लॉक ने अगर किया होगा तो क्या किया है, उसने कैसे निकाला होगा ये फॉर्म। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग टू फॉलो हियर, ठीक है? मींस हम एक जनरल फॉर्म अब लिखना चाहते हैं वेव फंक्शन के लिए, तो उसको देखेंगे कि कैसे आती है जनरल फॉर्म। ये किटल में आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे से मिलेगा, दिस ऑल स्टफ इज टेकन फ्रॉम द किटल, बट आप मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स यहाँ डाला है, ऑल अदर एक्सप्लेनेशंस इज फॉलोइंग ओरली, सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ये नहीं कि बस जो स्क्रीन पे आया उसको कॉपी पे लिखा और शब्द जो है उड़ने दो हवा में, दैट वोंट मेक एनी सेंस टू यू, ठीक है? ये और आप लिखोगे भी नहीं कुछ चलेगा, you should try to notice what physics I am trying to talk, या मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? So now let us assume that we have 1D केस के लिए हम ये क्रॉनिंग सॉरी व्हाट यू कॉल ब्लॉक थ्योरम देखेंगे 1D केस के लिए, because it is simple, then we can generalize it for 3-dimensional case as well. So now let us assume that we have some periodic potential, any general shape, defined by ux. Periodic है तो means a suppose is the periodicity, suppose a is the periodicity, तो ये periodicity condition ही है, ux plus a is equal to ux। अगर periodic potential है तो periodic function कोई भी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फोरियर सीरीज से, याद आया होगा कुछ, है ना? अब चलते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर पे, किटल चैप्टर 2 पे, 1-dimensional लैटिस। अब ये जो अभी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर है ना, दिस इज वेरी क्रूशियल, और ये बहुत सारी जगहों पे रिलेट करेगा कंसेप्चुअली फिजिक्स में, स्पेसिफिकली कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में, ठीक है? ये मान लीजिए हमारा 1-dimensional पीरियोडिक चेन ऑफ एटम्स है, क्रिस्टल है, 1-dimensional क्रिस्टल है, तो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग a है मान लीजिए, तो क्या होगा? मतलब पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी क्या होगी? a होगी, मतलब फिजिकली ये मतलब है इसका u ऑफ x का। और रेसिप्रोकल स्पेस क्या था? फोरियर सीरीज ही तो थी, राइट? तो इसकी फोरियर सीरीज यदि हम लिखते हैं, सॉरी इसकी फोरियर सीरीज अगर हम लिखते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं उसको? दैट वाज सम टर्म हियर at somewhere say k equal to g is equal to 0, then there was another term, इसको मैं ऐसे बना देते हैं 2 pi by a 4 pi by a, कुछ इस तरह से थी, if you remember it, है ना? 0 2 pi by a 4 pi by a minus 2 pi by a minus 4 pi by a and so on, यही थी ना? मीन्स ये जो है ये आपकी ट्रांसलेशनल वेक्टर, अगर इस 1D केस के लिए मैं ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखूं t, so that will be n times a, right, where n is some
इंटीजर, तो अगर ये मेरा 0 है, रेफरेंस है, तो 1 into a will represent this atom, या this lattice point, 2 into a will represent this lattice point, n is equal to -1 will represent this lattice point, and so on. तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर इज सफिशिएंट टू जनरेट द वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। उसी के कोरस्पॉन्डिंग द कोरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस, व्हिच इज नथिंग बट द Fourier lattice, we can say, is represented by G, where G is equal to इसको मैं H times A star बोल देता हूं, where A star is 2 pi by A. A star is reciprocal lattice vector, primitive vector for reciprocal lattice. तो ये मेरा रियल स्पेस के लिए primitive vector है A star मेरा reciprocal lattice के लिए primitive vector है। तो G जो है, जैसे T रियल स्पेस में ट्रांसलेशनल वेक्टर है, इसी तरह G जो है रेसिप्रोकल स्पेस में ट्रांसलेशनल वेक्टर है। और ये क्या बता रहा है, G की वैल्यूज की कौन कौन सी फोरियर टर्म्स आपकी फोरियर सीरीज में आएगी जब आप पोटेंशियल के लिए फोरियर सीरीज लिखोगे। तो ये यहाँ पे यही बोलने की कोशिश की गई है, भाई ये फोरियर सीरीज ही है, कुछ भी नया नहीं है। UG आर द फोरियर कोएफिशिएंट्स समेशन ओवर G। फोरियर सीरीज ऐसे लिखते हैं ना, आई होप यू रिमेंबर द फोरियर सीरीज। अब मैं क्योंकि प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में ये पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं फोरियर सीरीज बता रहा हूं यहाँ पे, बट आई एम श्योर यू आर यू रिमेंबर दैट थिंग। ये फोरियर सीरीज ही लिखी है हमने। तो UX को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका पोटेंशियल रियल स्पेस में है, ये पोटेंशियल के कंपोनेंट्स रेसिप्रोकल स्पेस में है। सो G is equal to 0, 1, 2, 3 so on, इस तरह से अलग अलग टर्म्स आपकी होंगी। इज दिस क्लियर? यस सर। है ना? तो अगर पोटेंशियल इस तरह से है, अगर हम पोटेंशियल की फॉर्म लेते हैं, ये ऐसे ही टिल में दिया है, तो मैं डिराइव नहीं करूंगा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। यू कैन फोरियर रेसिप्रोकल फोरियर कंपोनेंट्स तो आपको निकालने सीखे ही आपने, कहीं मैथमेटिकल फिजिक्स में स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए फोरियर कंपोनेंट्स देखे थे कहीं, उनकी जो वैल्यूज होती थी दैट वाज समथिंग लाइक 1/g होता था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिमिलरली कूलम पोटेंशियल लेते हो तो द फोरियर कंपोनेंट्स विल गो लाइक 1/g square, मींस UG विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/g square। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे G बढ़ेगा इस सीरीज में, तो UG की वैल्यूज स्मॉल होती जाएंगी 1/square। तो इसका मतलब इस पोटेंशियल को लिखने के लिए फोरियर सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स नहीं लेने की आवश्यकता, ओनली फ्यू टर्म्स आर सफिशिएंट, ठीक है। कुछ टर्म में ही काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसके बाद वाले टर्म्स निग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होगा उनका। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैलकुलेशंस करते हो, फॉर एग्जांपल बैंड स्ट्रक्चर, वहां पे एक टर्म आती है G max। सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ G जो आप ले रहे हैं, है ना, तो वो G max इससे रिलेटेड है, इस एक्सपेंशन से रिलेटेड पोटेंशियल के, कि भाई कितना हाईएस्ट G ले रहे हो आप टू एक्सपैंड द पोटेंशियल, है ना। तो कहीं कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो सब डिटेल्स, बट इसको नोटिस कर ले, G max किससे रिलेट रहेगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी देयरफॉर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को रियल होना है, पोटेंशियल क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी हैज टू बी ए रियल फंक्शन, मैथमेटिकली इट हैज टू बी रियल, इट कांट बी कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर फॉर दिस थिंग टू बी रियल, ये जो फोरियर कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, या उनकी एक स्पेसिफिक फॉर्म होनी चाहिए, विच इज समथिंग लाइक दिस। और ये भी चीज मैंने ना किट्टल सेकंड चैप्टर में किया था, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रियल हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, याद होगा आपको शायद। तो वही कंडीशन, सेम चीज हमने यहाँ पे इस्तेमाल करी है। तो UX की कुछ ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे G कुछ भी हो सकता था in general for any periodic potential, but for the potential to be real this should have this specific form, means Fourier coefficient for negative and positive terms दोनों सेम होने चाहिए, that is why this factor of 2 has come here, ठीक है। इसको आप यहां से भी जोड़ सकते हो, दो टर्म्स आएंगी ना, देखो -G के लिए आएगी एक, तो एक +G के लिए आएगी सेम टर्म, तो सेम ही चीज किया है इसने। और इनको अगर आप देखते हो, कुछ भी मतलब कॉम्प्लेक्स फिजिक्स नहीं है इसमें, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है कोई। सो e raised to the power iota gx, e raised to the power iota gx क्या होना चाहिए, cos of gx plus iota sin of
gx, और ये जो माइनस आयोटा gx क्या होना चाहिए, cos ऑफ gx माइनस आयोटा साइन ऑफ gx, ठीक है। सो फॉर दिस सम टू बी कंप्लीटली रियल, अगर ये सम रियल होगा, कब होगा रियल, जब ये दोनों टर्म्स कैंसिल कर जाएंगी एक दूसरे को, है ना। मीन्स द फोरियर कोफिशिएंट u माइनस g इज इक्वल टू u प्लस g, मीन्स दोनों के कोफिशिएंट, ये तभी संभव होगा जब u g कॉमन होगा दोनों में। इन जनरल जो टर्म्स आनी है, अगर वो बराबर नहीं होंगे तो क्या होनी है एक्चुअली, दिस विल बी लाइक ug e रेज टू द पावर आयोटा gx प्लस u माइनस g, एक माइनस वाली टर्म आएगी, e रेज टू द पावर आयोटा gx, यहां माइनस होएगा, ठीक है। तो अगर ug इज नॉट इक्वल टू माइनस ug, इन केस ug इज नॉट इक्वल टू u माइनस g, तो ये कंडीशन फॉर पोटेंशियल टू बी रियल सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब u फॉर माइनस g शुड बी सेम एज u फॉर प्लस g, ये बोलने का मतलब है। तो इस तरह से हम इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। दैट्स व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव हियर ऑफ राइटिंग दिस स्पेसिफिक फॉर्म। इज दिस क्लियर? और एक और चीज हमने कही कि भाई फॉर कन्वीनियंस हमने ये एज्यूम किया कि जो क्रिस्टल है वो सिमेट्रिक है x इक्वल टू 0 के अबाउट, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 0 हमारा रेफरेंस सेंटर है, इसके अराउंड पोटेंशियल सिमेट्रिक है, और उससे हमारा क्या हो जाएगा, u नॉट विल बी 0। दूसरा हमने एज्यूम किया u नॉट जो है वो 0 होगी, ये कांस्टेंट टर्म आएगी u नॉट, तो दैट इज आल्सो 0, ठीक है। अदरवाइज आपको u नॉट का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, दिस सिंपल अजम्पशंस अगर हम ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल सिमेट्रिक और u नॉट इज 0, तो श्रोडिंगर इक्वेशन होनी चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन शुड सेटिस्फाई द श्रोडिंगर इक्वेशन, इजंट इट। वेव फंक्शन निकालना है, अभी हमें पता नहीं वेव फंक्शन क्या होगा। अभी तक हमने पोटेंशियल के बारे में बात करी, क्योंकि हैमिल्टोनियन इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी पीरियोडिक थी, तो पोटेंशियल के बारे में हमने बोला कि अच्छा इस तरह से लिख सकते हैं हम पोटेंशियल को अपने इन दिस स्पेसिफिक फॉर्म। अब इस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म को लेके हम आगे बढ़ते हैं और श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। सो दिस विल बी लाइक दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी टर्म, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी टर्म। सो इसको अगर हम लेते हैं, इसको वैसे ही रखते हैं, एंड दिस वी हैव पुट द पोटेंशियल एनर्जी टर्म, यही वाली लेके चल रहा है वो आगे, कोई बात नहीं, आगे कहीं ना कहीं u g इक्वल टू u माइनस g ले लिया होगा, तो दैट वुड मीन द सेम, कहीं कोसाइन फॉर्म में लिखा होगा, बट ओके लेट अस स्टिक विद दिस फॉर्म, सो दैट्स ओके। बट हाँ, ये ध्यान में रखना कि कहीं पे कॉस ले लिया होगा तो दैट वुड मीन द सेम थिंग जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म होनी चाहिए, एच साई इक्वल टू ई साई है, ये कुछ भी नया नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। अब ये होता है यदि, तो वेव फंक्शन, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और हम यहां पे कर रहे हैं इसके साथ कि अच्छा वेव फंक्शन कैसा हो, ये तो चलो पोटेंशियल पार्ट आ गया, हैमिल्टोनियन पार्ट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन वी आर आस्किंग इज व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन। तो हम कह रहे हैं अच्छा वेव फंक्शन कुछ ऐसा हो। अब आप बोलोगे अच्छा ऐसा कैसे ले लिया हमने, ये क्या करा इसमें, where k is 2 pi n by l, ये भी हमने बोल दिया, where l is length of the crystal. So this form of the wave function actually comes from the Born-Karman boundary condition. सेम चीज देखो भाई, पोटेंशियल पीरियोडिक है तो फोरियर सीरीज उसकी क्या होगी, ये होगी। हम कह रहे हैं अच्छा वेव फंक्शन भी पीरियोडिक है, पर उसकी पीरियोडिसिटी a नहीं है, एटॉमिक पीरियोडिसिटी वाली नहीं है। बॉर्न-करमैन बाउंड्री कंडीशन से हम बोल रहे हैं कि भाई वेव फंक्शन भी पीरियोडिक है, वेयर L इज इक्वल टू NA ओवर द लेंथ ऑफ द क्रिस्टल। बाउंड्री इफेक्ट्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में इस फंक्शन के लिए भी तो हम फोरियर सीरीज लिख सकते हैं ना, साई ऑफ x प्लस L इज इक्वल टू साई ऑफ x, सेम थिंग पीरियोडिक फंक्शन, तो उसके लिए भी फोरियर सीरीज लिख सकते हैं, ये फोरियर सीरीज ही है ना। और ये जो क्या है ck जो है ये फोरियर कोएफिशिएंट है, बट दीज आर कमिंग बिकॉज ऑफ बॉर्न-करमैन बाउंड्री कंडीशन, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, वेयर k
वहां पे जी क्या था? ये जो पोटेंशियल के लिए मैंने लिखा था, तो जी वॉज इक्वल टू n टाइम्स 2π/a, यही था ना जी। मैंने इसको ये भी बोला था n इंटू ए स्टार, दिस इज योर ए स्टार। अब यहां पे k, g की बजाय अब हम वेव फंक्शन की पीरियोडिसिटी मींस बॉर्न बॉर्न करमैन बाउंड्री कंडीशन की वजह से हम k ले रहे हैं, एक k वेक्टर, वेव वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा ये, क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे इसको। k जो है वो क्या होगा इस केस में? n इंटू 2π/l, क्योंकि इस केस में पीरियोडिसिटी a थी g के केस में, और इस केस में पीरियोडिसिटी l है वेव फंक्शन के केस में। सो पोटेंशियल के केस में पीरियोडिसिटी जो थी वो a थी, दैट इज व्हाई g वाज दिस 2π/a टाइम्स n, और वेव फंक्शन के केस में पीरियोडिसिटी l है, सो दैट इज व्हाई दिस इज द स्पेसिफिक फॉर्म फॉर k। इज दिस क्लियर? तो वेव फंक्शन की ये स्पेसिफिक फॉर्म हमने यूज करनी है, which is coming from born Kerman boundary conditions. Is this clear? यस सर। कोई सवाल Yes, sir. की तरफ से? Anyone with any kind of query? Excuse me, sir. हाँ, सर ये जो हमने वेव फंक्शन की फॉर्म ली है, ये जो हाँ जी। हमने फूरियर सीरीज ली है सर, ये हाँ। पूरे ट्रांसफॉर्म की भी तो जनरल फॉर्मुलेशन ऐसी ही होती है। कैसी? हाँ, तो वही तो ली, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही बोला। नहीं सर, फूरियर सीरीज सीरीज तो में अलग। लिया। मतलब आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, विल यू प्लीज रिपीट? कोई डाउट है या क्या बोलना चाह रहे हो? दिस सर इज मैं ये कह रहा फूरियर। हूँ हाँ बोलो। कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का स्ट्रक्चर भी तो ऐसा ही होता है। वहां इंटीग्रल आएगा ना, यहाँ समीशन है, डिस्क्रीट है ये, कॉजी कंटिन्यूस, बात करेंगे इस पे, है ना? वहां इंटीग्रल आएगा। फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में कोई फर्क नहीं है ज्यादा। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं डिस्क्रीट भी हो सकता है हमारा फंक्शन, पीरियोडिसिटी a के बाद है, बट अगर कॉन्टिन्यूस मानेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। ओके सर, ठीक है, अच्छा तो क्लियर? और कोई क्वेश्चन? यस, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आई वुड से कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के कोर्स की। इसको बहुत ध्यान से देखो, और किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे। सर इसमें जो यूजी के ऊपर हमने कंडीशन लगाई, यूजी इज इक्वल टू यू माइनस जी, यस यस। तो यहाँ पे जो यूजी है वो तो हमने रियल कंसीडर किया, लेकिन जब हमने इसको वहाँ लिया था, मतलब जो डेंसिटी के केस में लिया था सेकंड चैप्टर में आई थिंक, हाँ 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 तो वहाँ पे हमने n माइनस पी स्टार इज इक्वल टू एन पी यूज किया था। हाँ, वही सेम ही चीज है, तो दोनों से एक ही बात आती है, दैट इज ओके। मतलब एन पी वहाँ स्टार पे इज तो इक्वल टू एन पी। भाई देखो, एन पी स्टार इज इक्वल टू एन पी अगर हो रहा है, कोई नंबर है जिसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वही नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? रियल ही होगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम नहीं हो सकता ना, हाँ तो जी। रियल नंबर के लिए ही उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सेम होगा ना। क्लियर? यस सर, यस। हाँ, तो अलग अलग बोलने के तरीके हैं, दैट्स वन एंड सेम थिंग, दैट्स फाइन। अच्छा, तो और कोई सवाल? यस यस यस, वी कैन, आई कैन होल्ड फॉर दिस, आई मीन फॉर योर क्वेश्चंस। और कोई सवाल है? वेल, इफ नो क्वेश्चंस, लेट्स कम टू दिस, कर ही लेते हैं डिस्कस। शुड आई डिस्कस दिस, और you want some time to go back and do a self study and come tomorrow with this, then we will discuss for this. क्या चाहते हैं आप लोग? मैं आगे चलूं या आप लोग पहले एक बार पढ़ के आना चाहते हो? पर पढ़ के आना चाहते हो मींस आप सीरियसली जाएं, और ये जो मैं अभी बोला ये सब आप एक बारी किटल की किताब से ध्यान से पढ़ें। ओके? यस सर। So, okay, let me stop here, and I request you all to go back home and आप घर पे ही हो वैसे, go back home क्या, go back to the big book by Kittel, और सेकंड चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो सब, और अभी जो पढ़ रहे हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ो, पन्ने पलट के देखो, सेकंड से इसमें आओ, 7th चैप्टर है ये,
और दोनों में देखो कि अच्छा क्या हो रहा है, दोनों का बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करो बहुत ध्यान से। ये जब आप ध्यान से करोगे ना, आपको कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड विद व्हाट इज ब्रिलियंट जोन, व्हाट इज दैट रेसिप्रोकल स्पेस, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ये के स्पेस क्या है, ई के कैसे आता है, वो सब हम करने जा रहे हैं कमिंग क्लासेस में। बट अगर यहाँ से छूट जाएगा ये, तो आप आगे थोड़ा सा यू मे फील लिटिल लॉस्ट कि अच्छा अब वो पिछला वाला तो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, होगा कुछ कभी पढ़ लेंगे, पर वो कभी हम पढ़ते नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ रुकता हूँ, आप आज ही पढ़ें उसको। कल वी हैव ए क्लास राइट, सो कल की कक्षा में हम ये डिस्कस करेंगे। बट कल की कक्षा में आने से पहले आप वो पढ़ के आए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो वो भी लेके आए। नहीं क्लियर हो रहा है तो टुमारो यू कैन जस्ट पुट अप योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर देम, ठीक है। तो सिंसियरली डू दिस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर हम आगे बात करेंगे इसकी, विच इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। वाह, वेरी गुड, यू साइंड योर अटेंडेंस। सबकी हो गई अटेंडेंस? करिए सारे साइन, शाबाश। वेयर इज अंकिश भाटिया? आया अंकिश? गायब है अंकिश, स्टिल एब्सेंट। एनीवन ट्राई टू कांटेक्ट हिम? हुई किसी की बात? कोई दोस्त है अंकिश का? ये सर हुई थी बात उससे। तो क्या